پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ زندہ، پاک، جلالی اور مقدس ترین اسم اعظم میں جو سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی یسوع المسیح، آپ اس کے مقدس اور قیمتی ترین نام میں میری طرف سے سلام قبول کیجیے، اور خداوند کی تعریف ہو کہ آج اسی کے نام سے ہم باہم جمع ہیں کہ ہم مل کر اس پرستش، دعاؤں اور پھر خداوند کے اس زندگی بخش اور پاک کلام کے وسیلہ سے برکت پانے والے ہو سکیں۔ ہم خداوند کا جتنا بھی شکر کریں اتنا کم ہے کہ اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ سے دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی ہیں وہاں ہم مل کر خداوند کے کلام کو، اس فریش من کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ان باتوں کے لیے خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم عہد عتیق میں سے زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم 59 یعنی 59 50 اور 9 زبور پر غور کر رہے ہیں۔ گزرے کل ہم نے پہلی 3 آیات پر غور کیا تھا۔ آج میں 4تھی آیت سے لے کر 10 آیت تک آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا، لیکن یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ داؤد کا ہی ایک زبور ہے جس میں وہ رب العزت کے حضور، جس سے اس کا دل لگا ہوا تھا، دعا کرتا، فریاد کرتا ہے، اور اس کی پروٹیکشن، اس کا تحفظ، اپنے لیے سلامتی طلب کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس زبور کے جب ہم ٹائٹل کو دیکھتے ہیں تو وہی بات، زیادہ دیر نہیں، میر مغنی، خواہ وہ کوائر کا ڈائریکٹر تھا یا خداون جو موسیقی کا خود موجد ہے اس کے لیے تھا، لیکن یہ اس میر مغنی کے لیے التشخیط، یعنی جس کا مطلب ہے تباہ نہ کر، کے سر پر زبور ہے۔ یہ تباہ نہ کر سے متعلق 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اے خدا تو ساؤل کو تباہ نہ کر، پاسبلٹی ہے، لیکن دوسری طرف ہم اس زبور کی روشنی میں جو روح ہمیں نظر آتی ہے اس زبور کی، وہ یہ ہے کہ داؤد اپنے لیے یہ دعا کر رہا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے ہلاک اور تباہ نہ ہوں۔ اور پھر مقتام ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں، یعنی ایسا زبور جو گولڈن زبور ہے، کندھن، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ساؤل نے لوگ بھیجے اور انہوں نے داؤد کے گھر کا محاصرہ کر لیا، پہرا لگا دیا۔ کیوں؟ کہ داؤد کو مار ڈالے۔ یوں لگتا ہے کہ داؤد ایک لحاظ سے اپنے گھر میں نظر بند ہے، اور اس دوران داؤد یہ دعا اور یہ التجا کر رہا ہے خداوند کے حضور۔ ساتھ ہی ساتھ حمد اور خدا کی تعریف اور شکر گزاری کے اعتبار سے یہ بہت ہی خوبصورت ترین زبور ہے کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو، اپنے ممسوحوں کو اپنے دشمنوں سے اور حاسدوں سے بچاتا ہے۔ جب ہم پہلا سیموئل
देखते हैं, यानी शमूएल की पहली किताब और उसके 19 बाब को। शमूएल की पहली किताब और उसका 19 बाब और उसकी 11 और 12 यहां पर लिखा है, और शाऊल ने दाऊद के घर पर कासद भेजे कि उसकी ताक में रहें और सुबह को उसे मार डालें। सो दाऊद की बीवी मीकल ने उससे कहा कि अगर आज की रात तू अपनी जान न बचाए तो कल मारा जाएगा। और फिर मजीद इस वाक़े से मुताल्लिक हम इस शमूएल की पहली किताब के 19 बाब में देखते हैं। इस वक्त इंतहाई कम है, जिस सबब से मैं इसको पढ़ने से रहा। आप बाद में यह पहला शमूएल 19 बाब जरूर तिलावत कीजिएगा, आपकी काफी मदद होगी। याद कीजिए कि दाऊद एक अच्छा मौसीकार, एक अच्छा प्रस्तार, एक अच्छा पोएट यानी शायर, एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा जंगजू, खुदा से दिल लगाने वाला, बादशाह और नबी। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद हम देखते हैं कि उसके लिए भी उसके दुश्मन सफ आरा थे, उसके भी दुश्मन थे। दाऊद की बहुत शोहरत थी, आप जानते हैं, और यह भी जानते हैं, मैं पहले भी किसी वक्त बता चुका हूं, और वो ये कि जब शाऊल की शोहरत हुई, जाति जूलियत को, जात के रहने वाले जूलियत को उसने मार भगाया। माबाद इस शाही खानदान में उसकी शादी हुई। हम शाऊल की बेटी की बात कर रहे हैं, तो और ज्यादा दाऊद की शोहरत बढ़ती चली गई। लेकिन इसके साथ साथ यह भी कि शाऊल दाऊद का दुश्मन और हासिद बन गया, यानी हसद करने वाला। एक तो यह कि जो क्वालिटीज और जो खुसूसियात दाऊद में थी वो शाऊल में कहां, और दाऊद की जब शोहरत हुई, इतनी फतूहात उसने हासिल की, खुदा ने कहा तू मेरे दिल के मुवाफिक है। प्रस्तश करता था तो शाऊल से बुरी रूह निकला करती थी। और आप जानते हैं कि दाऊद का बहुत बड़ा मुकाम था, और यहां तक कि शाऊल को यह शमूएल के जरिया से मालूम हो गया था कि शाऊल, तूने कई ऐसे काम किए जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं थे, इसलिए अब तेरी सल्तनत तुझसे चाक कर दी जाती है और उसको दी जाती है जो तेरा पड़ोसी है और मेरे दिल के मुवाफिक है। और जब शाऊल को यह पता चलता है, पहले तो बजाते खुद दाऊद का काम तमाम करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि मुहावरा भी है, जनु रब रखे ओनू कौन चखे। मुखालफतें हुई, लेकिन खुदा अपने बंदे का मुहाफिज और निगहबान रहा। अब शाऊल इस खौफ और डर के मारे कि कहीं दाऊद मेरी बादशाही ना ले ले,
कहीं ये उस तख्त पर ना बैठे जिस पर मैं बैठा हुआ हूं। एक पिंजरे में दो शेर कैसे हो सकते हैं? जिस सबब से अब दाऊद के कत्ल का वो मंसूबा बनाता है। अबी सलूम और तो ऑलरेडी उसके मुखालिफ थे ही, अब अपने ही नहीं गैर भी, और इवन बादशाह खुद दाऊद की मुखालफत करने पर उतर आया और उसके कत्ल के लिए उसने कासद भेजे कि वो घात लगाकर उसके घर के पास बैठे और उसका काम तमाम कर दें। यही बात हमने सैमुअल की पहली किताब के 19 की 11 और 12 में भी, और यही बात इस जबूर की पहली आयत से पहले जो टाइटल है उसमें भी लिखी हुई पाते हैं। अब दाऊद जब देखता है कि मेरे दुश्मन बहुत बढ़ गए और मुझे वो घेरा डाले हैं, तो उस वक्त वो याहवे से इल्तिजा करता है। दाऊद के बहुत सारे दुश्मन थे, पता नहीं कितने, हम उनको गिन नहीं सकते, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि घेरा डाले हुए थे और इस दौरान दाऊद खुदा के हुजूर इल्तिजा करता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों और हम खिदमत साथियों, याद रखिए कि खुदा का बंदा होना, और वो भी खुदा के दिल के मुवाफिक, खुदा को बहुत भला लगेगा, लेकिन अबलीस को कभी भी पसंद नहीं आएगी ये बात। और इवन बाहर के लोग तो हैं ही, अपने घर के लोग दुश्मन बन जाएंगे। मुनज्जिए आलमीन खुदावंद यीशु मसीह की बाबत क्या ख्याल है? आप अपनों में आए और अपनों ने उन्हें कबूल नहीं किया। कितने दुश्मन 3-3.5 साल साथ रहने वाले भी मसीहा का सौदा कर बैठे। और आप यह भी जानते हैं कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि रोमी सिपाही, मजहबी यहूदी रहनुमा आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, और आपने अपने पैरवी करने वाले, तकलीद करने वालों से यही कहा, अगर मुझ हरे दरख्त के साथ ऐसा होता है तो तुम सूखे के साथ क्यों नहीं होगा? हर वो शख्स जो खुदाबंद यीशु मसीह की पैरवी करना चाहता है, यह बहुत अच्छी बात है, और यह सौदा घाटे का नहीं है। उखरवी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, गुनाहों की मुआफी हमारी है, लेकिन दूसरी तरफ मसीह की पैरवी करना ऐसे ही है जैसे आप सांप की बिल में हाथ डालते हैं, क्योंकि अबलीस को कभी खुशी नहीं होगी, और वो ऐसे लोगों को तैयार करेगा जो आपकी मुखालफत में उतर आए, इवन जान लेने तक भी। आपकी इज्जतों के साथ खेलेंगे और इवन जान लेने तक तैयार हो जाएंगे। बहुत सी बातें यहां पर मैं कह सकता हूं, लेकिन खुदा के लोगों, खुदाबंद के पीछे चलते चले जाओ। यह फूलों की सेज नहीं है मसीह के पीछे चलना,
ये कांटों की राह है, सलीब उठाकर चलना है मालिके दो जहां के पीछे। यही मसीहा ने कहा। और मसीही जिंदगी कोई कंफर्ट जोन नहीं है, ये कांटों की राह है। और वो लोग जो मसीही जिंदगी को इस दुनिया में आसान पर आसाइश समझते हैं, आप घाटे में हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, मेरे भाई मेरी बहन, याद रख, इंसान सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले, लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा। यह है वो बात जो मसीह खुदावन ने कही, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। आयत 4 से मैं तलावत करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। इससे पेशतर दाऊद इल्तिजा करता है, मुझे इन दुश्मनों से, मुझे इन बुरे लोगों से बचा और छुड़ा। और बात आगे कंटिन्यू है, क्योंकि देख वो मेरी जान की घात में है। पहले ही बात हो चुकी है। देख, खुदा तो देखता ही है ना, वो नहीं देखता क्या? वो देख रहा था। लेकिन ये मर्दे मोमन की ये इल्तिजा है, ए खुदा देख, यानी निगाह कर, नजर कर, मेरी सुन, ये मेरी घात में है, मोर्चे बांधे हुए हैं, मुझे इन लोगों से बचा, क्योंकि ए खुदावन मेरी खता, मेरे गुनाह के बगैर जबरदस्त लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। सुनिएगा दाऊद क्या कहते हैं। वो मुझ बेकसूर पर, आयत 4, दौड़ दौड़ कर तैयार होते हैं, मेरी कुमत के लिए जाग और देख। इन आयात के मुताबिक हम ये देखते हैं कि दाऊद आयत 3 में भी जैसे सीखा और अब 4 में भी अपने आप की बाबत एक कन्फेशन करते हैं, और वो ये कि मैं बेकसूर हूं। याद रखिए, दाऊद के कहने का यह मतलब नहीं है कि मेरी नेचर या मेरी फितरत में कोई गुनाह नहीं है। दाऊद ये नहीं कह रहे थे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। नो, ये बात वो नहीं कहते थे। आपने कहा मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। लेकिन जब वो ये यहां पर कहते हैं कि ये मेरी जान की घात में है, मेरी खता या मेरे गुनाह के बगैर ये मेरे खिलाफ उठे हैं, मुझ बेकसूर पर दौड़ दौड़ कर आते हैं, तैयार होते हैं, तो इसका मतलब यह था कि असल में जो साउल जिस सबब से मेरे पीछे इन दुश्मनों को लगाए हुए है और मेरी जान का खां है और वो घात लगाए है, इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने साउल के खिलाफ कोई बुरा नहीं किया, ना ही मैं सोचता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस मामले में बेकसूर हूं और ये बेकसूर मुझ पर चढ़े आते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसा नहीं होता। बेशुमार लोग आज काल कोठड़ियों में और जेल की सुलाखों के पीछे हैं उस काम के वजह से जो उन्होंने किया नहीं होता। मैं 99% यह बात कह रहा हूं, उन्होंने नहीं किया होता। इसका यह मतलब नहीं कि वो
उन्होंने कभी और कोई गुनाह नहीं किया ना, यह बात नहीं है। हम इंसान और खताकार हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने गुनाह नहीं किया होता। और दाऊद यहां पर इसी बात को कह रहे हैं, मुझ बेकसूर, जिसने जिस मामले में वो घात लगाए हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये दौड़ दौड़ कर आते हैं। सिमराद शरीर शरारत करने में किस कदर फुर्तीला है। ओहो हो, काश के मैं आपको 2 हफ्ते पहले की कुछ ऐसी वीडियोस दिखा सकूं कि लाहौर में डंडा बरदार दाढ़ी वाले लोगों के जरिया से क्या कुछ हुआ। ट्रक्स, बसें और खूबसूरत गाड़ियां, ना सिर्फ उनके शीशे तोड़े गए, ना सिर्फ उनको डैमेज किया गया, बल्कि नजरे आतिश भी किया गया। और भाग भाग कर, काश के हम लोगों के बचाने के लिए कुछ करें, लेकिन इंसान की मत मारी हुई है कि वो दौड़ दौड़ कर शरीर शरारत के कामों में आगे बढ़ता है, फुर्तीला है और दौड़ दौड़ के तबाहकारी के काम करता है और समझता है मैं बहुत अच्छा करता हूं। इसीलिए दुआ कीजिए कि ऐ खुदा, ऐसे लोगों की आंखों से छिलके उतर जाएं और दिलों पर से पर्दे हट जाए। इन बातों को अच्छी तरह समझना है। और फिर दाऊद कहते हैं, ऐ खुदा मेरी कुमक के लिए जाग। खुदा का कलाम खुदा की बाबत यह कहता है, वो सोता नहीं और ऊंघता नहीं है, रूह है। उसकी मेरी तरह और आपकी तरह जिस्मानी आरजुएं और जरूरियात नहीं है। लेकिन दाऊद एक लिहाज से खुदा की तरफ इल्तिजा करते हुए कहते हैं, मुझे भूलना, मुझ पर निगाह कर, मुझे छोड़ ना दे, मुझे बचा, शरीर फुर्तीला है। ऐ खुदा मुझे जल्दी से इन दुश्मनों से बचा ले। और फिर आयत 5, ऐ खुदाबंद लश्करों के खुदा, इस्राएल के खुदा, सब कौमों के मुहासबा के लिए उठ, किसी दगाबाज खताकार पर रहम ना कर। सुन रहे हैं जी? ऐ खुदाबंद लश्करों के खुदा, यानी रब्बुल अफवाज। इब्रानी में यहोवा सबाउथ के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यानी लश्करों का खुदा। और फिर इस्राएल के खुदा, एल इज़राइल, वो इन अहम तरीन नामों को लेते हुए कि ए खुदा जिसके नादीदनी लश्कर है। नादीदनी लश्करों के बारे में जानना चाहते हैं तो अलीशा से पूछें और उसके खादम से। लेकिन यहां पर यही कहा जा रहा है, ए यहोवा सबाउथ एल इस्राएल, इन तमाम कौमों का मुहासबा यानी पीछा करना, मुहासबा करना, इसके लिए उठ यानी बेदार हो, एक्शन में आ, और किसी दगाबाज खताकार पर रहम न कर। किसी दगाबाज और खताकार पर रहम न कर। मैं पहले भी कह चुका हूं
कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, लेकिन आज मुझे और आपको यह कोई इख्तियार नहीं है कि हम कहें कि ए खुदा, वो जो हमें सताने वाले हैं, परसिक्यूट करने वाले, उनका बेड़ा गर्क कर दे। नहीं, हमारा कोई हक नहीं कि आज हम उनके लिए बद्दुआ करें, क्योंकि खुदा अगर उनके लिए तहम्मुल करता है तो हम क्यों ना करें। सब्र की तालीम हमें दी गई है, और फिर हम लानत के लिए तो बुलाए भी नहीं गए ना, हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। हम मसीह खुदावंद से पहले के टाइम पीरियड में नहीं है, बाइबल की टाइम लाइन के मुताबिक मसीह के बाद के जमाना में है। आज हमें अपने सताने वालों के लिए बद्दुआ नहीं कि इनको हलाक कर, नो, हमें दुआ करने की जरूरत है, ऐ खुदावन इनके दिलों को नूरे इलाही से मुनव्वर फरमा, अपने कलाम के जरिया, अपने खादमों के जरिया, मीडिया के जरिया, ख्वाब और रोया के जरिया इनसे हम कलाम हो, ताकि इनके दिल और इनके जहन मुनव्वर हों और वो आपको पहचान सकें, जैसे साउल ने राह दमश्क पर आपको पहचाना है। ये वो सदाकतें हैं। और इस 5वीं आयत के इख्तिताम पर फिर से वही लफ्ज आता है, सिलाह। यानी दाऊद इस वक्त कुछ देर के लिए रुके, खामोशी इख्तियार की, और जो कुछ खुदा ने दाऊद के लिए किया और जो कुछ पहली 5 आयात में वो कह चुके, लिख चुके, उन बातों पर अब थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं। और फिर आयत 6 और 7 इन 2 आयात को पढ़ता हूं। वो शाम को लौटते और कुत्ते की तरह भौंकते हैं। हमने बात की है ना कि शमूएल की किताब में मीकल ने भी कहा कि वो आते हैं ताकि सुबह को तुम्हें ले लें, कत्ल करें, मार डालें। साफ जाहिर है वो शाम को लौटते हैं, वापस आते हैं और कुत्ते की तरह भौंकते हैं, यानी दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, और शहर के गिर्द फिरते हैं जहां पर दाऊद इस वक्त थे। लगता है कि वो जरा शायद बुलंद मकाम पर थे। पॉसिबल है कि वो किसी पहाड़ी पर घर हुआ हो और वो देखते हुए हों कि कैसे वो घात लगाकर बैठे हुए हैं और वो आवाजें कसते हैं और शहर के गिर्द फिरते हैं कि किसी तरह से दाऊद को आ ले। और वो कहते हैं कि वो थकते नहीं हैं, मुसलसल भूखते चले जा रहे हैं। ये सख्त अल्फाज यहां पर इस्तेमाल हुए हैं ऐसे लोगों के लिए जो खुदा के लोगों के पीछे नाहक पढ़ते हैं। ये उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और देख, वो अपने मुंह से डकारते हैं। इसका मतलब आवाजें निकालते हैं अपने मुंह से। और जब मैं ये डकारने के लिए
स्टडी कर रहा था, गौर कर रहा था, तो मुझे दूसरे लफ्जों में यूं समझने के लिए कहने दीजिए कि जैसे धाड़ना होता है। अबलीस शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है, डकारता है, आवाजें निकालता है। और यहां यही वो कह रहे हैं, वो अपने मुंह से डकारते हैं, उनके लबों के अंदर तलवारें हैं, उनके लबों के अंदर तलवारें हैं, क्योंकि वो कहते हैं कौन सुनता है। जब यहां पर कहा गया कि उनके लबों के अंदर तलवारें हैं, तो यह बात कही जा रही है जबान के अंदर गोश्त के इस 2 आउंस लोथड़े को, जिसको हम जबान कहते हैं। यह तलवार से ज्यादा तेज है, जहरे कातिल से भरी है, और न जाने हमारी इस जबान के इस्तेमाल करने के सबब से, गलत इस्तेमाल करने के सबब से कितने लोगों के खून हुए हैं, कितने लोगों के दरवाजे हमारे लिए बंद, और हमारे दरवाजे कई ऐसे लोगों के लिए बंद हुए हैं। तलवार और छुरी और चाकू से लगे हुए जख्म पॉसिबल है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन जबान के लगे हुए जख्म, ओ हो, वो ठीक नहीं होते। कि वडेरे ए गल नहीं सी कहंदे, ओ जी शीशा जुड़ जांदा है, लेकिन ओदी तरेड़ नहीं मिटदी। और हम यहां पर इस हकीकत को देखते हैं कि वो आवाजें कसते हैं, दहाड़ते हैं, उनकी जबानें जैसे तलवार हैं। कितने सख्त अल्फाज वो कहते हुए होंगे कि दाऊद ने उनके उन अल्फाज को जो उनकी जबान से अदा होते थे, यूं कहते हैं जैसे ये तलवारें हैं इनकी जबानें, ऐसे बोलते हैं, सख्त अल्फाज। और वो ये भी कहते हैं कौन सुनता है, कौन है इसका खुदा। देख लेंगे हम। और फिर आयत 8, 9 और 10, पर ऐ खुदावन तू उन पर हंसेगा। दाऊद का ईमान और भरोसा और यकीन और तकिया याहवे एल इला पर था। दाऊद अपने खुदा की कुदरत और हशमत से खूब वाकिफ थे। खुदा के मुकाबला में साउल और भेजे जाने वाले ये कासिद दुश्मन दाऊद की जान के खां क्या हैसियत रखते थे। इसलिए दाऊद ये कहते हैं कि ऐ खुदा तू उन पर हंसेगा। कोई जबरदस्त आदमी जब इंतहाई मूजी लोगों पर हंसे तो हमें यूं लगेगा जैसे वो उनका ठट्ठा उड़ा रहा है, लेकिन जब हम खुदा की बाबत देखते हैं तू उन पर हंसेगा से मुराद उनकी तेरी निगाह में कोई वैल्यू नहीं है। चला ले जो तीर उन्होंने चलाने हैं। तू तमाम कौमों को ठट्ठू में उड़ाएगा, क्योंकि ये कौमें खुदा की पैरवी नहीं करती और ठट्ठाबाज खुद ठट्ठू में उड़ाए जाएंगे। ऐ मेरी कुव्वत
किसको वो कह रहा है? बर्छे को? अपनी तलवार को? अपने हेलमेट और जरा बख्तर को? नो। अपने साथ जो लोग थे उनको? नो। वो खुदा से मुखातिब है। जे कदी खुदाई कारना ना बनाए ते बनाउन वालियां दी मेहनत अकारत है ते चौकीदार भावें राती सीटियां बजाउंदा रहे, अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो सारी मेहनत अब्स, हकारत और बेसूद है। दाऊद कहते हैं, ए खुदा तू मेरी कुव्वत है और मुझे तेरी ही आस है। कितनी बड़ी बात है ईमान वालों। काश के मैं और आप जब कभी अबलीस को सफ आरा होते हुए देखें, दुश्मनों को मुंह खोले हुए देखें, कहें ए खुदा तू मेरी कुव्वत है, तू मेरा जोर है और मुझे किसी चीज पर भरोसा नहीं, मासवा तेरे। मेरी आस और उम्मीद तुझ पर है, मुझे तुझ पर भरोसा है, क्योंकि खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है। ऊंचा बुर्ज, टावर, जहां पर मैं अपने आप को महफूज पाता हूं। वो मुझे बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। और आयत 10, मेरा खुदा अपनी शफकत से मेरा पेश रो होगा। अपनी शफकत, अपने रहम, अपनी मोहब्बत से मेरे आगे आगे चलेगा। और जब खुदा आगे आगे चले तो पीछे भले लश्करे फिरौन हो, नो प्रॉब्लम, समुंदर फट जाएंगे, दरिया रुख बदल लेंगे। इसलिए लाजिम है कि हमारी आस और उम्मीद खुदाबंद अपने खुदा पर हो। और फिर वो ये कहते हैं, खुदा मुझे मेरे दुश्मनों की पस्ती दिखाएगा, यानी वो उनको शिकस्त खोरदा करेगा, उनको मफ्तू करेगा और मुझे फाते। उनको शिकस्त खोरदा और मुझे फतयाब करेगा। यह दाऊद की आस और उम्मीद खुदावंद पर थी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस वक्त खा हम कैसे ही हालात से दो चार क्यों नहीं, लाजिम है कि इन तमाम हालात में हमें हालात की तरफ देखने के बजाय आलमे बाला की तरफ देखने की जरूरत है और खुदावंद से कहने की जरूरत है, ऐ खुदावंद मुझे माफ कीजिए, मैंने दाएं बाएं आगे पीछे साए के पीछे चला, यह नहीं कहा आप मेरी कुव्वत, आप मेरा जोर है, माफ कीजिए। खुदावंद आज से मेरा यह ईमान और भरोसा और मेरा कलाम यह होगा, आप मेरी कुव्वत, आप मेरे छिपने की जगह, आप मेरी पनागाह, आप मेरी निजात का सींग, आप मेरा ऊंचा बुर्ज हैं, आप मुझे फतहयाबी से हमकिनार करेंगे। और खुदावंद मुझे और आपको इसी ईमान पर कायम रहने का फजल अनायत फरमाए कि बल इसके के मैं बंद करूं, दुआ करूंगा आपके साथ मिलके। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, यकीनन हम अपनी कमजोरियों और खताओं का इकरार करते हैं। हम साए पर, इंसानों पर, बशर पर भरोसा करते रहे और कर भी बैठते हैं और हमें मायूसी होती है।
खुदाबंद हमारी आस और उम्मीद आप पर है। हमारे ईमान को बढ़ाइए ताकि हम हालात खा कैसे ही क्यों ना हो ये कहने वाले हूं कि मेरी आस ए तेरे उत्ते ए यहोवा पाक खुदा। और जहां कहीं हम कमजोर हुए हमें मुआफ फरमाइए। मैं अपने तमाम इन अजीज भाइयों और बहनों के लिए आपकी बरकत मांगता हूं, शिफा मांगता हूं, बहाली मांगता हूं, इत्मीनान और तसल्ली मांगता हूं, मोहब्बत और इत्तफाक और यगानगत मांगता हूं। हर तरह की लानत को यीशु के नाम से दूर चले जाने का हुक्म देता हूं। और खुदावंद चाहता हूं आप अपने लोगों की जिंदगी में पाक रूह के वसीले से ऐसा काम करें कि उनकी जिंदगी आने वाले काल के लिए गवाही बन जाए। सुनिए हमारी दुआ को और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन और निजात दहंदा यीशु अल मसीह के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। फिर मिलेंगे अगर खुदावन की पाक और मुकद्दस मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।